إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. سورہ احزاب کا ہمارا مطالعہ جاری تھا. 3 رکوعوں کا مطالعہ بحمدہ تعالی ہم نے کر لیا تھا. آج رکوع نمبر 4 سے ہم آغاز کریں گے. ابتدائی رکوعات میں ہمارے سامنے غزوہ احزاب کے احوال آئے تھے اور اس کے نتیجے میں منافقین اور مومنانہ طرز عمل ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا تھا. اب کچھ معاشرتی ہدایات ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں. یہ بات ابھی ہم نے سمجھا تھا. اللہ نے بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ اسوہ کاملہ ہے. لیکن آپ کا اسوہ کاملہ تب مکمل ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ ازواج مطہرات کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ نبی رحمت علیہ السلام اصل میں مرد تھے اور خواتین کے لیے بھی کچھ ہدایات ہیں کہ جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں کہ جو بالخصوص خواتین ہی بیان کر سکتی ہیں یا عمل کر سکتی ہیں. اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص مقام دیا تھا ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو. اس اعتبار سے یہاں پر ہدایات ہیں کہ جو آ رہی ہیں. اب غزوات کے بعد مدینے کے اندر کچھ مالی فراوانی تھی کہ جو ہو چکی تھی. ازواج نے بھی مطالعہ کر لیا دنیا کی متاع کے اعتبار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطالبہ پسند نہ آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر یہ آیات ہیں کہ جو نازل فرمائی ہیں. یہ بات ہم جانتے ہیں نبی رحمت علیہ السلام نے جو فاقہ اختیار کیا تھا وہ اختیاری تھا. گویا یہ اس لیے نہ تھا کہ آپ کے پاس مال و اسباب کی کمی تھی، بلکہ آپ یہ پسند فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. یہ وہ اختیاری فاقہ تھا کہ جو آپ نے اختیار کیا. اب جب مطالبہ کیا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، یہاں کی زندگی جینا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں دے دیتا ہوں اور پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں. اس کے ساتھ پھر میرے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے. اور اگر تم اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو بہتر جانتی ہو تو دیکھو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر روایات میں آتا ہے تمام ازواج مطہرات نے توبہ کی ہے اور اس کے بعد جس حالت پہ تھی اس کے اوپر شکر ادا کیا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی معاملہ ہے کہ جو ازواج مطہرات کے اعتبار سے بیان فرمایا کہ دیکھو اے نبی کی بیویوں، جو تم کام کرتی ہو، اگر کوئی گناہ کا کام کرو گی تو تمہارے لیے دگنا عذاب ہے کہ جو دیا جائے گا. یہ تم عام عورتیں نہیں ہو بلکہ تمہیں امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے، ان کے لیے مثال بننا ہے. نبی رحمت علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو کامل کرنا ہے. تمہارے اسوے کو اس کے اندر شامل ہوگا. تو اگر تم کوئی گناہ کا کام کرو گے تو تمہارے لیے دگنا عذاب ہے کہ جو دیا جائے گا. اسی کے برخلاف اگر تم نیک اعمال کرو گی، اچھے اعمال کرو گی تو دگنا اجر ہے کہ جو تمہیں اس کے بدلے میں عطا کیا جائے گا. مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے مخاطب کیا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، دیکھو تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو تو دیکھو تم ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں نزاکت اختیار نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مرد تمہاری نزاکت کی وجہ سے جو اس کے دل میں روک پیدا ہو جائے اور تمہاری طرف اس کی کشش ہے کہ جو بڑھ جائے. گویا اب امہات المومنین کو مخاطب کر کے امت کی عورتوں کو ہدایات ہے کہ جو دی جا رہی ہیں. جس طرح نبی رحمت علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کیا، ہدایات عطا فرمائی اور آپ کے ذریعے اہل ایمان تک ہدایات ہیں کہ جو منتقل کی ہیں، اسی طرح ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اہل ایمان کی عورتوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ دیکھو غیر مردوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے اندر لچک پیدا نہ کرو. کوئی بہت زیادہ بے تکلفی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ شیطان ہے کہ جو دلوں کے اندر اگر روگ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے وہ کشش ہے کہ جو پیدا ہو جاتی ہے جس کو اللہ دور کرنا چاہتا ہے. تو یہ ہدایت یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی. مزید اللہ نے بیان فرمایا
फरमाया वक़ुरना फी बुयूतिकुम, और देखो अपने घरों के अंदर करार पकड़ो, वला तबर्रुजना तबर्रुजुल जाहिलियतिल ऊला, और देखो ऐसे सच धज कर घर से बाहर ना निकलना जैसे जहालत के दौर के अंदर लोग निकला करते थे। गोया खवातीन का असल मुकाम उनका घर है। अल्लाह ने खवातीन को चिरागे खाना बनाया है, ना कि शमे महफिल। आज इसको पलट दिया गया, आज औरतों को घर से निकाल कर बराबरी का नाम देकर शमे महफिल बनाया गया, जहां घराने भी बर्बाद हुए, माशरे भी बर्बाद हुए। और इस रविश की वजह से जो सबसे ज्यादा जुल्म हुआ ये खुद औरतों के ऊपर हुआ कि उन औरतों को ना घर का छोड़ा ना बाहर का छोड़ा। गोया घर की जिम्मेदारी भी उन्हें अदा करनी है और बाहर लोगों की जिम्मेदारी भी अदा करनी है, घर वालों को भी खाना पिलाना है और जहाज पर बैठने वाले मुसाफिरों को भी उनको खिलाना है। गोया ये वो कैफियत है कि जो पैदा कर दी गई है। अल्लाह ने बयान फरमाया औरतों का असल मुकाम उनका घर है, वो घर के अंदर बैठे ये ज्यादा बेहतर है उनके लिए। हाँ, शरीयत ने पाबंदी नहीं की है, शरीयत ने एक्सेप्शंस रखा है। अगर कोई ऐसी जरूरत पेश आ जाए कि औरत को घर से बाहर निकलना ही पड़ जाए तो फिर उसके लिए अल्लाह ने उसूल बयान फरमाए हैं, उसके लिए अल्लाह ने सत्र हिजाब की पाबंदी बयान फरमाई है, उसके लिए अल्लाह ने लिबास के उसूल बयान फरमाए हैं, उसके लिए अल्लाह ने तरीक़ा-ए-कार बयान फरमाया है कि देखो क्या काम तुम कर सकती हो क्या नहीं कर सकती, किस अंदाज में तुम्हें बाहर निकलना है। ये तमाम तर तालीमात है कि जो शरीयत ने अता फरमाई है। फिर रुकन नंबर 5 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्दों और औरतों के 10 पसंदीदा औसाफ बयान फरमाए। बसो औक़ात ख़वातीन आती थी नबी रहमत अलैहिस्सलाम के पास, ये कुरान तो मर्दों के औसाफ बयान फरमाता है, मर्दों की तारीफ करता है, औरतों का तज़किरा इसमें नहीं मिलता। अल्लाह ने 10 औसाफ बयान फरमाए, मर्दों के अलग औरतों के अलग। गोया अल्लाह की निगाह में असल मामला क्या है कि जो नेकी के एतबार से ऊपर है वो सबसे आला और अरफा है। अल्लाह ने बयान फरमाया कि देखो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें, राज़बाज मर्द और राज़बाज औरतें, सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें, खुशू करने वाले मर्द और खुशू इख्तियार करने वाली औरतें, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, रोजेदार मर्द और रोजेदार औरतें, हिफाजत करने वाली अपनी शर्मगाहों के मर्द और हिफाजत करने वाली अपनी शर्मगाहों की औरतें, जिक्र करने वाली कसरत के साथ अल्लाह का मर्द और जिक्र करने वाली कसरत के साथ औरतें। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने इनके लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम है कि जो तैयार कर रखा है। गोया नेकी के मैदान में अल्लाह ने मर्दों औरतों को बिल्कुल बराबर कर दिया। बस औकात औरत मर्द से ऊपर जा सकती है इस नेकी के मैदान के अंदर, अल्लाह के पास कुर्ब हासिल करने के एतबार से, जन्नत में दर्जात हासिल करने के एतबार से उसका तस्वीर अल्लाह ने बयान फरमाया। हाँ, दुनियावी मामलात के अंदर अल्लाह ने मर्दों को फौकियत दी है। गोया इस निजाम को चलाने के लिए, इस मामलात को चलाने के लिए अल्लाह ने इंतजामी उमूर में मर्दों को एक दर्जा फौकियत है कि जो अता की है। सूरह निसा में अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया अलबत्ता कुर्बे इलाही के लिए, दर्जात बुलंद होने के लिए अल्लाह ने मर्दों और औरतों को मवाफ़िक़ मवाक़े हैं कि जो अता किए हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि देखो नहीं है कि लाए किसी मोमिन के लिए और न किसी मोमिना के लिए कि जब अल्लाह के रसूल किसी मामले में फैसला फरमा दे अयकुन लहुमुल खीरतु मिन अमरिहिम, तो हो उसके बाद उस मामले में उनके पास कोई इख्तियार, अल्लाह उसके रसूल कोई फैसला फरमा दे और उसके बाद मोमिन मर्द और मोमिन औरत ये कहे हाँ बात तो ठीक है, लेकिन ये लेकिन है कि जो मोमिनाना तर्ज अमल नहीं है, बल्कि हम समझ कर आ चुके मोमिनाना तर्ज अमल क्या है, समिअना व अताना, हमने सुन लिया, हमने इताअत कर दी, झुका दो अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे, ये है मोमिनाना तर्ज अमल। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक वहां पर एक रविश थी कि जो जारी हो चुकी थी, वो ये एक बातिल नजरिया था कि जो उनके माशरे के अंदर मौजूद था, और वो क्या था कि एक तो मुंह बोले बेटे का तसव्वुर और मुंह बोले बेटे को सगा बेटा समझते, और शरीयत ने सगे बेटे की बीवी को उसके ससुर के ऊपर हराम करार दिया है। गोया कोई शख्स है, उसका अपना बेटा है, उसकी जो बहू है वो जिंदगी भर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
ने उस शख्स पर हराम दे कर दी है। तो जो तसव्वुर बेटे का था वही मुंह बोले बेटे का तसव्वुर भी वो अपने अंदर रखते थे। अल्लाह ने इस नजरिए की रद्द फरमाई है और ज़ैद बिन हारिसा के जो मुंह बोले बेटे कहलाते थे उनसे निकाह करवाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी जात ज़ैनब बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हा से, लेकिन उनमें ना निभ सकी और बहम तलाक का मामला हो गया। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि अब ज़ैनब से मोहम्मद रसूलुल्लाह का निकाह होगा और हदीस के अंदर आता है, तिरमिज़ी की रिवायत है कि उनका निकाह अल्लाह ने 7वें आसमान पर कर दिया था। गोया अल्लाह का फैसला था। इस निकाह में क्या हिकमत थी कि उस रस्म को खत्म करना कि मुंह बोले बेटी की जो बीवी होती है वो सगी बहू नहीं होती है, वो उससे निकाह किया जा सकता है। अल्लाह ने ये हिकमत है कि जो आपके निकाह के जरिए इस माशरे के अंदर कायम की है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया, बड़ी उसूली बात बयान फरमा दी और आज के एतबार से बड़ी अहम तरीन बात है एक बंदा मोमिन के लिए, एक कलमा को मुसलमान के लिए, और इस अकीदे के बगैर वो बंदा मुसलमान हो नहीं सकता। अल्लाह ने बयान फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप। ये बात हम जानते हैं, अल्लाह ने आपको 3 बेटों से नवाजा था, लेकिन अल्लाह की हिकमत बचपन ही में तीनों का इंतकाल हो गया। आपकी बेटियों से आपकी नस्ल है कि जो आगे चली है, गोया नस्ली एतबार से, नस्बी एतबार से आप किसी बेटे के बाप नहीं है, बल्कि अल्लाह ने बयान फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और नबियों के खातम हैं। गोया अल्लाह ने उसूली फैसला फरमा दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के खातम हैं। अब इसके ऊपर जो ईमान नहीं लाएगा वो बाकी सारी चीजें मान ले, लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया कि देखो मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल हैं कि जो उठेंगे, वो झूठी नबूवत का दावा करेंगे, हर एक उसमें से कहेगा कि मैं नबी हूं, लेकिन आपने वाज़ेह फरमा दिया अना खातिमुन नबिय्यीन, मैं नबियों का खातिम हूं, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई हैसियत में नबी आने वाला नहीं है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल और आखिरी नबी ना माने वो मुसलमान हो नहीं सकता। अल्लाह ने इस बात को वाज़ेह फरमा दिया। उसके बाद रुकन नंबर 6 का आगाज होता है। अल्लाह ने बयान फरमाया कि देखो अल्लाह का खूब जिक्र करो, सुबह के वक्त भी शाम के वक्त भी, गोया हरदम अल्लाह को याद रखो। फिर नबी रहमत अलैहिस्सलाम की कुछ खुसूसी शान बयान फरमाई है। अल्लाह ने बयान फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बिलाशुबह हमने आपको भेजा गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और इंजार करने वाला बनाकर, व दाइयन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, बिइज़्निही, उसके हुक्म से, व सिराजम मुनीरा, और एक रोशन चिराग बनाकर भेजा है। गोया ये वो सिराज है, ये वो चमकता हुआ नूर है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फरमाया। जब सूरज निकलता है तो सारी टिमटिमाती हुई बत्तियां गुल हो जाती हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग बेआताब पर आया है तो तमाम बातें नजरियात हैं कि जो खत्म हो गए। सिराजम मुनीरा, आप हैं कि वो रोशन चिराग आपको बनाकर भेजा है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िम्नी एतबार से कुछ रुखसती से पहले तलाक के मसाइल हैं कि जो बयान फरमाए हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ खुसूसी माशरती अहकामात हैं कि जो आ रहे हैं कि जो खास आपके साथ थे, उम्मत के लिए ये चीज मना है। बयान फरमाया कि आप 4 से ज़ायद निकाह कर सकते हैं, आप किसी कानून के बगैर मेहर आप मेहर अदा किए बगैर भी किसी के साथ निकाह कर सकते हैं। मजीद बयान फरमाया कि आप अगर अज़वाज मुतहरात के दरमियान अदल ना करना चाहें तो उसकी भी अल्लाह ने आपको इजाजत दी है। ये कुछ इम्तियाजी शान थी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की गई। फिर रुकू नंबर 7 का आगाज होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके अंदर इब्तिदान ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा उनसे निकाह का तज़किरा बयान फरमाया और बुखारी में आता है कि जब निकाह हुआ तो वलीमे का भी एहतमाम हुआ। अब नबी रहमत अलैहिस्सलाम के घर में सहाबा आते थे, खाते थे और जाते थे, लेकिन कुछ सहाबा थोड़ा वक्त लगाते थे। नबी रहमत अलैहिस्सलाम उनको ना कहते कि अब तुम चले जाओ। अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी कि देखो नबी के घर के
अंदर आते हो तो खाओ और खाकर चले जाओ, ज्यादा वक्त ना लगाओ, वो उनके औकात कीमती हैं, उसको जाया ना करो। उसकी तरफ अल्लाह ने मुतवज्जह कर दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कुछ पर्दे के अहकामात के एतबार से। अब यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए कि ये जो आयात नाजिल हो रही हैं ताबीर खास के एतबार से बेहतरीन दौर है दौर नबवी। जिन लोगों के लिए नाजिल हो रही हैं, जिन औरतों का तज़किरा आया है, ये उम्मत की बेहतरीन औरतें हैं, उम्महातुल मोमिनीन। और जिन मर्दों के एतबार से तज़किरा आया है, अंबिया के बाद अफजल तरीन जमात है इंसानों के अंदर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन। वो एक नेकी और तक़वे के एतबार से उरूज है कि जो पाया जाता है। उसके बावजूद अल्लाह ने बयान फरमाया व इज़ा सअलतुमुहुन्ना मताआ, जब तुम सवाल करो अज़वाजे मुताहरात से किसी सामान के बारे में, सहाबा को मुखातब किया तो बयान फरमाया फसअलुहुन्ना मिन वराए हिजाब, तो उनसे सवाल करो हिजाब के पीछे से, पर्दे के पीछे से। अब जरा तस्वुर कीजिए, आज हमारे नजरियात पाए जाते हैं, हमें अपनी बहन बेटी के ऊपर एतमाद है, हमें बड़ा भरोसा है, तो माज़ अल्लाह के अल्लाह को अज़वाज मुताहरात पर एतमाद और भरोसा नहीं था। अल्लाह ने हुक्म दिया था, सहाबा को हुक्म दे रहे हैं कि उम्मत की माओ से मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो, हिजाब के पीछे से मांगो। ये उसूल है कि जो अल्लाह ने बयान फरमा दिए। मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया ये बात ज्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे दिलों के लिए और उनके दिलों के लिए भी, क्योंकि शैतान लगा हुआ है, शैतान किसी को भी बहका सकता है। तो बेहतर ये है कि क्योर किया जाए, प्रिकॉशंस इख्तियार किए जाएं, बजाय इसके कि पछतावा हो जाए। तो अल्लाह ने ये हिदायत है कि जो अता फरमाई है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि देखो क्या मामला है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं नबी रहमत अलैहिस्सलाम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, देखो तुम भी दुरूद भेजो और सलाम भेजो, बहुत सलाम भेजना नबी रहमत पर अलैहिस्सलाम। जब ये आयत नाज़िल हुई तो सहाबा आए और दरियाफ्त किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने दुरूद व सलाम का हुक्म दिया है। सलाम तो हम जानते हैं, जो तशहुद में हम पढ़ते हैं, आप पर सलामती भेजते हैं, आप पर दुरूद किस तरह भेजे, आप पर सलात किस तरह भेजे। तो नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो दुरूद इब्राहिमी ये सबसे बेहतरीन दुरूद है कि जो अल्लाह ने सिखाया है। तो गोया नबी रहमत अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ना, आप पर सलाम भेजना मोहब्बत के जज्बे के साथ, ये तकाजा है अहले ईमान से कि जो अल्लाह ने किया है। यहाँ पर एक बात जरूर समझ लीजिए, बसो औकात हो जाता है कि कोई किसी की चिढ़ के अंदर या किसी से दूर होने में इस इंतहा पे चला जाता है कि ये फला दुरूद और सलाम वाले हैं और हम तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। तो ये तर्ज़ अमल मुनासिब नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि देखो नबी रहमत अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम भेजो, कसरत से आपके ऊपर दुरूद और सलाम भेजना ये हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। और इसके हवाले से जामे तिर्मिज़ी की तो बड़ी शदीद रिवायत है कि जहां नबी रहमत अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए और उनके ऊपर दुरूद व सलाम ना पढ़ा जाए तो हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स। ये बद्दुआ है कि जो की गई है जिब्राइल अमीन की तरफ से, और नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर आमीन कहा है। तो हमें इस एतबार से भी बड़े मोहतात रविश इख्तियार करनी चाहिए। मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गुस्ताखान रसूल के बारे में बयान फरमाया कि इनके ऊपर अल्लाह की लानत है। रुकू नंबर 8 का आगाज होता है। अल्लाह ने मजीद पर्दे के अहकामात बयान फरमाए, ए नबी कह दीजिए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, अहले ईमान की औरतों से, गोया मजमूई एतबार से तमाम अहले ईमान खवातीन को मुखातिब कर लिया। क्या कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, कि वो लटका लिया करे अपने ऊपर से चादरों को, गोया पूरे वजूद को छुपाना जिसमें चेहरा भी शामिल है, उसका हुक्म है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आ रहा है। ये ज्यादा बेहतर है कि उनको पहचान लिया जाए और ईज़ा ना दिया जाए। यानी ये शुरफा में से हैं, ये नेक खवातीन में से हैं, इनको ईज़ा ना दिया जाए। वो कान अल्लाह गफूर रहीमा, और बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। मजीद बयान फरमाया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा उसकी सजा सिर्फ मौत है, वो उसको कत्ल किया जाएगा और उसको जहन्नम विसाल है कि जो
किया जाएगा। मजीद बयान फरमाया सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि ये क़यामत कब आएगी, वो ये अल्लाह ही के इल्म में है। और दुनियादार के कायदीन का जो बदतरीन अंजाम है, फिर उसका अल्लाह ने तज़किरा बयान किया। 90 रुकू का आगाज होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि देखो इनको मत सताओ, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये अल्लाह की आयात सुनाने वाले हैं। और उसके बाद आयत नंबर 70 और 71 है कि जो खुतबे निकाह के अंदर भी शामिल है। अल्लाह ने तक़वे की तरफ मुतवज्जा किया, अल्लाह ने ज़बानों के इस्तेमाल की तरफ मुतवज्जा किया और अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया कि देखो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ही असल कामयाबी है कि जो तुम्हें मिलने वाली है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अमानत का तज़किरा किया कि जो अल्लाह ने जमीन की तरफ भी भेजा, आसमान की तरफ भी भेजा, पहाड़ों की तरफ भी भेजा, लेकिन इंसानों ने इसको कबूल कर लिया। मुफस्सिरीन इसके एतबार से बयान करते हैं कि यहाँ पर रूह रब्बानी भी हो सकती है, वो रूह के जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फूकी है, व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, इसका तज़किरा भी हो सकता है। या कुरान का तज़किरा भी हो सकता है कि अल्लाह ने इंसानों को कुरान अता फरमाया। या यहाँ पर इख्तियार का तज़किरा भी हो सकता है, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, नेकी और तक़वे का इख्तियार है कि जो अल्लाह ने अता फरमाया, कि जिसके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया इम्मा शाकिरन व इन्ना कफूरा, या फिर तुम शुक्र करने वाले बन जाओ या फिर कुफ्र करने वाले बन जाओ। ये इख्तियार है कि जो अल्लाह ने अता फरमाया है। अल्लाह इन इख्तियारात को हमें सही तौर पर इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद सूरह सबा का आगाज होता है। शिर्क की जोरदार नफी है कि जो इसके अंदर की गई है, तौहीद बारी ताला का बयान इसके अंदर आया है और अल्लाह की कुछ नेमतों का तज़किरा है। मज़ीद दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर है कि जो इसके अंदर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वो जिसके लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। वो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़मत है कि जो इब्तिदा बयान की गई है। उसके बाद अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया कि देखो क़यामत बर्पा होने वाली है, ये आसमान है कि जो बदल दिए जाएंगे, ये जमीन है कि जो खत्म कर दी जाएगी और बिलाखिर ये क़यामत है कि जिसका ज़हूर होने वाला है। फिर अल्लाह ने आखिरत के इनकार करने वालों के लिए धमकी है कि जो पेश की है। दूसरे रुकू का आगाज होता है, दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के फजल का तज़किरा है। अल्लाह ने बयान फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला, बेशक हमने अता की दाऊद को अपनी तरफ से फजीलत। क्या फजीलत अल्लाह ने अता की? दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फजीलत अता की कि अल्लाह ने पहाड़ों को, परिंदों को, जब दाऊद अलैहिस्सलाम तस्बीह किया करते थे तो ये उनकी तस्बीह में उनके साथ शामिल हो जाया करते थे। ये वो तज़किरा अल्लाह ने बयान फरमाया। अल्लाह ने लोहे को दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ पर नरम कर दिया था। दाऊद अलैहिस्सलाम उसके जरिए ज़िराह बनाया करते थे, गोया वो लोहार का काम किया करते थे। अल्लाह ने यहाँ से ये भी वाज़ेह किया कि देखो हाथ की कमाई को मायूब ना समझो, अंबिया को अल्लाह ने ये सलाहियत अता की थी और वो हलाल रोजी कमाया करते थे। उसका तज़किरा अल्लाह ने यहाँ पर बयान फरमाया। फिर अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अपनी इन आयात का तज़किरा बयान फरमाया। ये दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, अल्लाह ने ताबे कर दिया इनके हवा को जो 1 महीने की मुसाफत को पलक झपकते में पूरा कर देती थी। अल्लाह ने जिन्नात को इनके ताबे कर दिया कि जो इनके लिए काम किया करते थे, जो महलात बनाया करते थे, जो पानी में गौताज़न होकर वहां से मोती निकाला करते थे। फिर आयत नंबर 14 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का दिलचस्प वाकया बयान किया है कि देखो अगर गैब का इल्म इन जिनों को होता कि जो आज बने बैठे हैं, कभी किसी की खबर लाकर दे देते हैं, कभी किसी की खबर लाकर दे देते हैं, तो जरा देखो तो सही, होश के नाखून लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी असा से टेक लगाकर खड़े हैं, जिन्नात हैं कि जो महल की तामीर कर रहे हैं। इतने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली, लेकिन असा पर टेक लगाने की वजह से वो गिरे नहीं हैं और वो खड़े हुए हैं, जिन्नात काम में लगे हुए हैं। अल्लाह ने उस असा के अंदर दीमक है कि जो लगाई है और उस दीमक ने असा को जब चाट लिया तब गिरे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम। और वहां जिन्नात को मालूम ही ना हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ने दिखा दिया ये जिन्नात कोई गैब वैब की खबरें नहीं लाते, बस ये खबरें हैं कि जो कुचक लेते हैं और इधर की उधर ये बातें हैं कि जो पहुंचा देते हैं, वो इनके ऊपर ज्यादा भरोसा ना करना। मजीद अल्लाह ने कौम सबा की नाशुक्री का तज़किरा बयान फरमाया। ये कौम सबा
یمن میں آباد تھی. تقریباً 800 سال قبل موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی یہ قوم ہے. اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی, اللہ نے ان کو باغات بھی دیے, اللہ نے ان کو پانی بھی عطا فرمایا, وہاں پر اللہ نے ان کو علم بھی سکھایا اور انہوں نے پانی کے اوپر بند بھی باندھ رکھا تھا. لیکن انہوں نے ناشکری کی. یہ اپنے رب سے کہنے لگے, اے اللہ ہماری بستی تو بڑی قریب قریب ہے, ذرا ہمارے فاصلوں کو دور کر دیں, ذرا ہمارے رزق کو دور کر دیں. گویا یہ اللہ سے ایڈونچر کا مطالبہ کرنے لگے کہ ہم ذرا طویل سفر کریں گے, ذرا مزے اٹھائیں گے. اللہ کا عذاب ہے کہ جو ان کے اوپر آیا ہے, وہ بند ہے کہ جو ٹوٹا ہے, اور اللہ نے اس بستی کو ہلاک ہے کہ جو کر دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے. یہ وہ بات ہے, اللہ نعمتیں دے رہا ہے, انسان ناشکری کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے, کسی کی سفارش کام نہ آئے گی. یہ فرشتوں کو اللہ کا معبود بناتے ہیں, یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. کہیں لات ہیں, کہیں منات ہیں, کہیں عزا ہیں, یہ فرشتوں کے نام رکھ لیتے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو یہ فرشتوں کے اوپر بھی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے, یہ بھی کانپ اٹھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے آگے. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, بے شک ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور انذار کرنے والا بنا کر بھیجا. گویا یہاں پر پھر اس بات کی گواہی ہے کہ تمام انسانیت کے لیے اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رسالت قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے. آپ کے بعد اب جو بھی رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ بدبخت ہے. گویا اس کے اوپر ایمان لانا اسلام سے پھر جانا ہے. وہ کافر ہے کہ جو اس کے اوپر ایمان لے کر آئے گا کسی بھی حیثیت کے اندر. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہاں پر اس بات کا اضافہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا انکار یقینی ہے, اور جو اس سے دلیل مانگے اپنی نبوت کا وہ بھی کافر ہے, اور جو اس کی کفر میں شک رکھے وہ بھی کافر ہے. گویا یہ فتویٰ ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرار دے دیا, گویا وہ سارے کے سارے کافر ہیں. آپ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں. اس کے بعد رکو نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے. دنیا دار قائدین کی پیروی کا بدترین انجام ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا. 6 مرتبہ اس طرف اللہ نے متوجہ کیا ہے. رکو نمبر 5 کا آغاز ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو تمہارے مال ہیں, تمہاری اولاد ہیں, یہ تمہارے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں. اللہ کی قربت حاصل کرنا ہو تو ایمان کو مضبوط کرو اور نیک اعمال کرو. یہ ہے کہ جو اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اگر ایمان ہے, نیک اعمال ہیں, تو یہ مال بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جائے گا, یہ اولاد بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جائے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان, یہ عرب میں ملک التجار تھے, یہ عرب کے بے تاج بادشاہ تھے, یہ تجارت کے میدان میں عروج پر تھے. لیکن یہی وہ مال تھا کہ جو اللہ کی قربت کا ذریعہ بن گیا ایمان اور عمل کے ذریعے سے. اللہ نے عطا فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بنا دے گا. مزید اللہ نے بیان فرمایا مشرکین شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں, یہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی پرستش کرتے ہیں. یہ وہ طرز عمل ہے کہ جو اختیار کرتے ہیں. پھر شرک کرنے والوں کی کچھ دھرمی کا تذکرہ ہے, اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں بڑے دلسوز انداز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو سمجھایا ہے کہ دیکھو کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ. وما بلغوا معشار ما اتیناہم, جبکہ نہیں یہ پہنچتے 10ویں حصے تک کہ جو ان کے پہلوں کو دیا گیا تھا. گویا اللہ نے جو طاقت دی تھی ان سے پہلے لوگوں کو, آج کے لوگوں کے پاس اس کے 10ویں حصے کی طاقت بھی موجود نہیں ہے. قوم عاد ہم سمجھ کر آ چکے کیسی طاقتور قوم تھی, قوم سمود ہم سمجھ کر آ گئے کیسے پہاڑوں کو تراش کر مکان بنایا کرتی تھی. آج شاید وہ جدید ٹیکنالوجی بھی موجود نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی. اس کے بعد بھی اللہ کے مقابلے میں کرتے ہیں, اللہ کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے بس میں تو نصیحت کرتا ہوں یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے, 2-2 1-1 یا 3-3, 2-2 1-1, اور اس کے اوپر اللہ ہی ہے کہ جو مدد کرنے والا ہے. اور یہ جو پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں یہ کوئی دیوانگی پر نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی طرف ہے کہ جو تمہیں
बुलाने वाले हैं। मजीद फरमाया कुल जाअल हक, कह दीजिए कि हक आ चुका है, और देखो कह दीजिए कि अगर मैं बहका हुआ हूं तो मेरे जो बहकने का बवाल है वो मेरे ऊपर है, तुम्हें तो हिदायत मिल गई है, इस वही के जरिए तुम उसको कबूल करने वाले बन जाओ। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे ऊपर इसका बवाल है, तुम कुरान पर अमल करने वाले बन जाओ, तुम उसकी तालीमात को पढ़ने वाले बन जाओ, तुम उसको समझने वाले बन जाओ। आज के लिए भी ये पैगाम है कि ठीक है अगर किसी दाई के साथ आपको इख्तलाफ है ना मानिए उसकी बात को, लेकिन अल्लाह के कलाम को तो मान लीजिए, नबी रहमत की तालीमात को तो मान लीजिए, अल्लाह की शरीयत पर तो अमल करने लग जाइए। किसी से जाती इख्तलाफ उसका बवाल उसके ऊपर है, लेकिन अल्लाह के अहकामात पर अमल करोगे तो कामयाबी मिलेगी, और उससे मुंह मोड़ोगे तो हमेशा हमेशा की नाकामी और जिल्लत है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाएगा। उसके बाद सूरह फातिर का आगाज होता है, ये भी मक्की सूरह मुबारक है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़मत का तज़किरा बयान हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। गोया वो अल्लाह के जो आसमानों को भी बनाने वाला है, वो अल्लाह के जो जमीन को भी बनाने वाला है। ये है वो कुदरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कुछ कुदरत के मज़ाहिर हैं कि जो उनके सामने पेश किए हैं। उस अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया, वो फरिश्ते कौन हैं? किसी के 2 पर हैं, किसी के 3 पर हैं, और किसी के 4 पर हैं, और किसी के उससे बहुत ज्यादा पर है कि जो अल्लाह ने अता किए हैं। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्होंने 2 मरतबा जिब्राइल अमीन को उनकी असल मलकूती हालत में देखा था, और वो 600 पर के साथ आसमान के ऊपर खड़े हुए थे। वो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जिसको जितने पर चाहे अता फरमा दे, ये अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर हैं। फिर अल्लाह ने बयान फरमाया कि दुनिया और शैतान के फरेब से बचो, ये दोनों तुम्हें नाफरमानी की तरफ लेकर जाने वाले हैं। अल्लाह मुतवज्जा करता है, या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़, बेशक अल्लाह का वादा ही सच्चा वादा है, चुनाचे ना तुमने धोखे में डाले ये दुनिया की जिंदगी, वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, और देखो तुम्हें ये धोखेबाज शैतान भी धोखे में ना डाले। ये दुनिया भी धोखे में डालती है, शैतान भी धोखे में डालता है। ये शैतान दुनिया को इस्तेमाल करता है ट्रैप करने के लिए। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने अट्रैक्शन रखी है, इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने टेम्पटेशन रखी है, इस दुनिया की तरफ खिंच जाता है और अल्लाह के अहकामात को फरामोश कर देता है। ये शैतान धोखा देता है, ये शैतान सब्ज बाग दिखाता है, ये शैतान अल्लाह से दूर करता है, ये शैतान सिर्फ अल्लाह की सिफत रहमानियत दिखाता है और दुनिया की नाफरमानी में लगा देता है। ये शैतान का धोखा है। अल्लाह ने मुतवज्जा कर दिया, मजीद बयान फरमाया इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको अपना दुश्मन समझो। अल्लाह ने बयान फरमा दिया ही इज डिक्लेयर्ड एनिमी, वो खुला खुला दुश्मन है, इसको अपना दुश्मन मानो, इसको अपना दुश्मन समझो और इससे बगावत करो, अलम बगावत बुलंद करो। इसका हुक्म है कि जो अल्लाह अता फरमा रहा है। दूसरे रुकू का आगाज होता है, अल्लाह ने बयान फरमाया कि देखो इज्जत तो सिर्फ कुरान के जरिए ही मिलने वाली है। मन काना युरीदुल इज्जा, जो शख्स इज्जत चाहता है, फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, तो सारी की सारी इज्जत तो अल्लाह ही के पास है। वो अल्लाह ही है कि जिसको इज्जत दे दे, वो अल्लाह ही है कि जिसको जलील कर दे। दुनिया से इज्जत हासिल करना ये दुनिया ही की तरह कमतर और हकीर है। इलैहि यसअदु कलिमुत तय्यिब, उसी की तरफ चढ़ती हैं सारी पाकी बातें, वल अमलु सालिह यरफउ, और नेक अमाल भी उसी की तरफ भेजे जाते हैं। वो ये अच्छे कलमात भी उसी की तरफ जाते हैं, नेक अमाल भी उसी की तरफ जाते हैं, और वही जात है कि जो इज्जत देने वाली है। अल्लाह उस इज्जत की हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया कि हर इंसान सरापा अल्लाह के इख्तियार में है। ये दरिया, ये समुंदर अल्लाह की नेमत और कुदरत का बहुत बड़ा शाकार है कि जो अल्लाह ने अता फरमाया है। खुद साख्ता माबूदों की बेबसी का तज़किरा अल्लाह ने बयान फरमाया कि देखो ये कैसे लोग हैं कि जिनके पास खुद अपना इख्तियार मौजूद नहीं है। मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, नहीं वो इख्तियार रखते खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी। भैया हकीर तरीन, आजकल हम खजूर खाते हैं ना, जरा खजूर खाने के बाद वो जो गुठली और गुठली के दरमियान में जो धागे की तरह मौजूद होता है, ये उतना भी इख्तियार नहीं रखते जिसको तुम अल्लाह के साथ पुकारते हो। और लोगों को देखें उसके पीछे दीवाना वार लगे होते हैं, अल्लाह को फरामोश कर देते हैं, अल्लाह की तालीमात को फरामोश कर देते हैं, शरीयत के अहकामात को फरामोश कर देते हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नत को फरामोश कर देते हैं, और बातिल अकीदे के ऊपर, बातिल नजरियात के ऊपर, बातिल
इबादत के ऊपर अपने आप को भुलाए जा रहे हैं और लगे हुए हैं और समझते हैं बड़ी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ने बयान फरमाया कि वो इतना भी इख्तियार नहीं रखते, सिर्फ अल्लाह ही को मदद के लिए पुकारो, अल्लाह ही से दुआ करो, अल्लाह ही के सामने मनाजात करो, अल्लाह ही के सामने अपने दुखड़े बयान करो, वही तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला है। फिर अल्लाह ने बयान फरमाया कि देखो अल्लाह गनी है और हम सारे के सारे इसके दर के फकीर हैं। या अय्युहन्नास, ए लोगो, अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सारे के सारे अल्लाह के मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह वही है बहुत बेनियाज और लायक हम्दो सना। गोया हम सारे अल्लाह के दर के फकीर हैं। अल्लाह चाहे तो दे दे, अल्लाह चाहे तो छीन ले, उसके खिलाफ कोई फैसला करने वाला नहीं है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि अल्लाह की कुदरत का हसीन करिश्मा, ये कायनात के अंदर रंगारंगी है कि जो फैली हुई है, ये अल्लाह ने इतना हसीन कायनात है कि जो बनाया है। ऐसी तिजारत बताएं कि जिसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। अल्लाह ने बयान फरमाया ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज को कायम करते हैं, जो हमने उनको रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं, सिर्रन व अलानिया, खुल्लम खुल्ला भी और पोशीदा भी। यरजूना तिजारतन लन तबूर, वो उम्मीद रखते हैं ऐसी तिजारत की कि जो हरगिज नुकसान वाली नहीं है। गोया ये वो लोग हैं कि ऐसी तिजारत करो जो कामयाबी ही कामयाबी है। बिजनेस करने वाला तो ये जान चाहता है कि उसको अपने तिजारत में, उसको अपने कारोबार में, उसको अपने सौदे के अंदर नफा ही नफा हो। अल्लाह बयान करता है ये है नफा का सौदा कि जहां कोई नुकसान ही नहीं है। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं, जान तक चली गई तो अल्लाह है कि जो शहीद फी सबीलिल्लाह का दर्जा अता फरमा देगा। इससे बेहतरीन कोई सौदा हो सकता है। फिर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कुरान के हवाले से 3 किरदार। पहला किरदार वो है कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुन लिया अपने बंदों में से, लेकिन वो जुल्म करने लगा उसके ऊपर। गोया उसके अहकामात तो आए लेकिन उसके बाद वो जुल्म करने लगा। गोया अहकामात से उसने अपने आप पर जुल्म करने लगा, गोया उस अहकाम से अपने आप को पीछे हटा लिया। बाज उनमें से वो हैं कि जो मियाना रवि इख्तियार करने लगे, और बाज उसमें से वो हैं कि जो सबकत ले जाते हैं बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, नेकी में अल्लाह के हुक्म के एतबार से। ये वो लोग हैं कि जो असल कामयाब होने वाले हैं, कि जिनकी दौड़ अल्लाह की तरफ है। फस्तबिकुल खैरात, दौड़ो भागो लपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ। अल्लाह ने इनको कामयाब करार दिया है। फिर नाफरमानों का हसरतनाक अंजाम है कि जो बयान किया गया, और आखिरी रुकू के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया कि देखो घाटे का सौदा ना करो। ये जो खुद साख्ता माबूद हैं, इन्होंने क्या तख्लीक किया, ये क्या बनाने वाले हैं जिनको तुम रब बनाए बैठे हो। फिर मुशरिकीन मक्का की महरूमी का तज़किरा है, और आखिर में वाज़ेह फरमा दिया कि अल्लाह को कोई आजिज नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी कुदरत के साथ बैठा हुआ है। कोई जमीन पर चलने वाला ऐसा ना हो कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो उसको पकड़ ले, लेकिन अल्लाह उसको ढील दे रहा है और अल्लाह उसको मुकर्ररा वक्त तक ले जाएगा। फ़इन्नल्लाह कान बिइबादिही बसीर, तो बिलाशुबा अल्लाह है अपने बंदों को खूब देखने वाला। अल्लाह ने मोहलत दी है तो जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह चाहे पकड़ ले तो इंसान एक कदम आगे ना चला सके। उसके बाद सूरह यासीन का आगाज होता है। ये कुरान हकीम का दिल करार दी गई है। इसके 2 रुकुआत में अल्लाह ने रिसालत का बयान किया, एक रुकू के अंदर तौहीद का बयान है, और आखिरी 2 रुकुआत के अंदर आखिरत का तज़किरा आ रहा है। वह ईमानियात सलासा, इन 5 रुकुओं के अंदर अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, कसम है हिकमत वाले कुरान की। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप अल्लाह के रसूलों में से हैं। यह कुरान रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही देने वाला है। गोया आपकी रिसालत पर गवाह ये खुद कुरान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको गवाह बना दिया। मजीद बयान फरमाया मुशरिकीन मक्का ईमान नहीं लाएंगे। हिदायत किन लोगों को मिलती है? ये वो लोग हैं कि जिनको आप नसीहत करते हैं वो अल्लाह से डरने वाले हैं, बिन देखे उसको। जो रहमान से बिन देखे डरे, अल्लाह उसको है कि जो हिदायत अता करता है। हम लिख देते हैं उसे जो अमल वो आगे भेजता है, और जो वो पीछे छोड़ता है। ये तमाम के तमाम अमाल हैं कि जो महफूज किए जा रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया कि देखो ये जो साबका उम्मत की दास्तान
दास्तान पेश की जाती है, ये बड़ी सबक आमूज है। फिर अल्लाह ने कौम का तस्करा यहाँ पर बयान फरमाया। ये वो कौम थी कि जो नाफरमानी पर डटी हुई थी। अल्लाह ने एक नबी, एक से ज्यादा नबी इनकी तरफ मबूस किए जो अल्लाह की तौहीद की दावत देते थे। कौम ने मानने से इनकार कर दिया। एक मर्द मोमिन वहां पर आया है और उसने मुतवज्जा किया कि देखो ये अल्लाह के नबी हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, ये कौन सा तुमसे मुआवजा तलब करते हैं। और उसके बाद उस बंदे मोमिन का ऐलान हक बयान किया कि मैं तो अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाला हूँ, मैं उस जात की इबादत करता हूँ जिसने मुझे पैदा किया है और मुझे उसी की तरफ लौटाए जाना है। वो यह पूरा का पूरा तौहीद पर मबनी खुतबा है कि जो उसने वहां पर पेश कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया क़ील उदखुलिल जन्नह, उससे कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो ये मालूम ऐसा होता है कि तौहीद हक बयान करने की वजह से कौम ने उसको शहीद कर दिया। अब अल्लाह शहीद का बदला यहाँ पर बयान कर रहा है। अल्लाह ने बयान फरमाया क़ील उदखुलिल जन्नह, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो ये शहीद फी सबीलिल्लाह डायरेक्ट जन्नत में दाखिल हो जाता है। मजीद वो शख्स कहता है क़ाल या लैता कौमी यअलमून, उसने कहा ऐ काश मेरी कौम इस हालत को देख लेती। अल्लाह ने कितना आला मर्तबा मुझे दिया है। बिमा गफर ली रब्बी, इस बात की वजह से कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया। वजअलनी मिनल मुकरमीन, और उसने मुझे मुअज़्ज़िज़ लोगों में कर दिया। गोया उस वक्त भी वो बंदा अपनी कौम की फिक्र कर रहा है। ये होते हैं मुखलिस लोग कि शायद ये कौम जान लेती कि देखो अल्लाह ने कितना बेहतरीन बदल है कि जो मुझे अता फरमाया है। मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया कि अफसोस है इंसानों पर, उनकी अक्सरियत पर कि वो नाफरमानी ही पर लगी हुई है। तीसरे रुकू का आगाज होता है। अल्लाह ने मज़ाहिर कुदरत बयान फरमाए और अपने एहसानात हैं कि जो लोगों के सामने पेश किए हैं। फिर अल्लाह ने बयान फरमाया कि अल्लाह ने हर शय को जोड़े जोड़े पैदा किया। ये जो पेयर्स की सूरत में पैदा करना है ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। और आज की 21वीं सदी के अंदर इंसान इस नतीजे पर पहुंचा है कि दुनिया की तमाम शय जोड़े जोड़े अल्लाह ने पैदा की है। फिर चाहे वो मर्द हो या औरत हो, फिर चाहे वो फूल हो या पौधे हो, फिर चाहे वो दिन हो या रात हो, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो कि प्रोटॉन हो, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अल्लाह ने इसके जरिए वाज़ेह फरमाया कि इस दुनिया का भी एक जोड़ा है और वो जोड़ा क्या है, वो है आखिरत। वो दुनिया के बाद आखिरत लाज़मी आने वाली है, उसकी तरफ अल्लाह ने मुतवज्जा किया। फिर अल्लाह ने कुछ सवारियों का तज़किरा किया। ये सवारी अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी है। आज इसके जरिए मीलों का सफर है कि जो इंसान तय करता है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। फिर इंसानों की महरूमी और बंदों की नाशुक्री का तस्करा है कि जो अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया है। चौथे रुकू के अंदर रोज़े क़यामत क्या कुछ होगा अल्लाह ने उसकी तरफ मुतवज्जा किया। रोज़े क़यामत उठने का मंजर अल्लाह ने बयान फरमाया हाज़ा मा वअदा रहमान, ये है वो वादा कि जो रहमान ने किया था मरने के बाद दोबारा जी उठने का। और हदीस के अंदर आता है कि जो बंदे मोमिन उठाए जाएंगे वो बड़े इत्मीनान की कैफियत के साथ उठेंगे। वो तो ईमान रखते थे ना। ये जो कुफ्फार होंगे, मुशरिकीन होंगे, उनके ऊपर हैबत तारी होगी कि हमें किसने अपने आरामगाह से खड़ा कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि उनकी कैफियत क्या है। वो कहेंगे कि किसने हमें उठा दिया। वो ये उठाए जाने के एतबार से वो नाफरमानी किया करते थे, इनकार किया करते थे। नेक लोगों के बारे में अल्लाह ने बयान फरमाया सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलाम कहा जाएगा उन्हें निहायत मेहरबान रब की तरफ से। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज के लोग मुजरिम अलग हो जाएं नेक लोगों के साथ। दुनिया में मिले हुए थे, अब अलग हो जाएं। गोया ये दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी है कि जो अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दी। अहले ईमान अलग, कुफ्फार मुनाफिकीन और मुशरिकीन अलग कर दिए जाएंगे। कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको अलग कर देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हमने नहीं वसीयत की थी बनी आदम को कि तुम शैतान की इबादत ना करना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला और वाज़ेह दुश्मन है। व अनिअबुदूनी, और मेरी ही बंदगी करना। हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। आज हमारे सामने ये सवालात मौजूद हैं। आज हमें अपना जायजा लेना चाहिए। कल अल्लाह बोलेगा मना किया था ना शैतान की इबादत ना करना, मेरी बंदगी करना, ये सीधा रास्ता है। आज हमारे लिए सवाल ये निशान है, हम किसकी बंदगी करने वाले हैं, हम किसकी पैरवी करने वाले हैं।
پھر مجرموں کا برا انجام ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرمائے گا، اللہ نے فرمایا کہ ان کے منہوں پر مہر لگا دیا جائے گا اور ان کے ہاتھ ہوں گے، ان کے پیر ہوں گے کہ جو ان کے خلاف گواہی دینے والے ہوں گے۔ یہ ہاتھ اور پیر کے بغیر کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ کوئی ان سے چھپ کر گناہ کر سکتا ہے؟ یہ کر اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ اور پھر اس کے آخری رکوع میں اللہ نے انسانوں کی بے بسی کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ وہ اللہ ہے کہ جو اسے کھڑا کر دے گا، لوگوں کو اللہ کے سامنے حاضر کر دے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا یہ قرآن کوئی شاعری نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شاعری ہے، یہ قرآن کوئی شاعری نہیں ہے۔ پھر اللہ نے چوپائی کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آنے والا، اللہ ہی ہے کہ جو کام آنے والا ہے، وہی ہے کہ جو لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ عذر پیش کرتے تھے، حیرت کرتے تھے کہ انسان مر جائے گا تو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ تم جھگڑا کرتے ہو جبکہ اس نے تمہیں ایک منی کے قطرے سے پیدا کر دیا، تم مر جاؤ گے تو کیا تمہیں دوبارہ نہیں کھڑا کر سکتا؟ یہ کس بات پر حیران ہونے والے لوگ ہیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا نہیں وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو قدرت رکھنے والا، الا ان یخلق مثلہم، اس پر کہ وہ پیدا کر دے ان کی مثل اور انسانوں کو۔ کیسی تعجب کی باتیں ہیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ مزید اللہ نے فرمایا کیوں نہیں وہ اس بات پر قادر ہے، وَهُوَ الْخَالِقُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بس اس کا حکم جب وارد ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سو پاک ہے وہ اللہ کے جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر ایک چیز کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایمان اور ان عقائد پر یقین عطا فرمائے، اور اللہ کے سامنے جو حاضری ہونی ہے اس کے لیے آج تیاری ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔